So today's topic is relationship between education and philosophy, supervised by Dr. Gopal Singh, and my name is Abhishek Pal, and I am privileged to present it over you to you over here. So this is the overview, where you can see that we will be covering the subtopics which are introduction, definitions of education, why do we need education, definition of philosophy, why do we need philosophy, relationship between education and philosophy, and after all, conclusion. So the first thing, how the word education is originated. So that question firstly comes to our mind. What is that? Latin word, which means, anyone knows how to break this word? E plus D. No, this is not the way to answer. You have to raise hand and then I will select you and you'll have to answer. The education word is come from E plus duco. The word E plus duco. Latin word. E plus duco. Yeah. From inner side to outer side. Is it visible to all of you? To proceed, yes. From Inner side. inside. अंदर से बाहर की ओर. आगे बढ़ने की प्रक्रिया, आगे जानने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया. तो अगर हिंदी में समझे तो यही मतलब निकलता है. ठीक है? So we have our ancient philosopher was given this definition, like what Plato has said. Plato said, education is to develop physically, mentally a human being in such a way that his or her potentialities could be realized. So the sentence is more things. So what do we get from this sentence? This is our next question. So how will we deal with it? How can we explain it? If I take example of my own journey, or say my life journey, I say that I was not able to
and I could not express myself to even a one person at the time when I was in class 8, but I tried. Then I became school captain at that time. After that, when I was in class 10, I joined National Cadet Corps. You all are very well acquainted with that fact. What is NCC? I participated there, and I took different initiatives at that time. So I gradually made myself capable of doing such good things. Some leadership qualities I get that time. I got at that time, and finally when I came to B.Ed, which I pursued from DBS College, then I realized that I must go beyond this. I should think that what I have not learned or what my potentialities are at that time. So I wanted to grow that potentialities, and I took initiatives. So I think I am well formed if I compare to my previous terms. So these are the things that the creator has said. Education is to develop physically, mentally. I physically developed myself. I was very fat at that time, but education makes you to learn that thing, that where you should focus on. I worked on physically, mentally, and I learned soft skills. There, if you go through these lines, I realized my potentialities, and everyone knows within its time period. Now, modern philosopher John Dewey, what has he said? Education is a process to develop capabilities of a person as she could control his environment and fulfills his duty. How can we explain that? Is there anyone who wants to explain firstly? Please raise hand. Anyone? No, other one. I want different people to answer this question. Yes. John Dewey said, education is a process to develop all the capabilities of a person. She could control his environment or fulfill his or her duties. Any word that strikes in your mind? Any incidents? No? Okay, nothing. इन्होंने ये कहा था कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो वातावरण, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें हमारी जो योग्यताएं हैं, मतलब जो विकसित होती हैं, जो हमारी क्रिया जो हम करते हैं वातावरण के साथ, उनमें सामंजस्य को स्थापित करना, यही एक प्रक्रिया है शिक्षा द्वारा। लेकिन मैं एक इंसिडेंस जानना चाह रहा था, एक एग्जांपल जानना चाह रहा था, ताकि सभी को ये मालूम चल जाए कि आखिर ये जो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है। हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट, जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट को ही देखते हैं, प्रकृति को ही देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे यही ज़्यादा तो सब देखते हैं। ठीक, इन्वायरमेंट की बात आती है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं जैसे क्लास 8 में थे, फिर से वहीं आते हैं। क्लास 8 में क्या कर रहे थे? अगर हम किसी टीचर के क्लासरूम में भी जाते थे, बोलते थे नहीं अंदर नहीं आना, ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे हम ग्रेजुअली
और क्लासेस में आते गए, बीएड में आए, तो हमने क्या देखा, हमारे टीचर्स हमारे से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखा रहे हैं। होता था, हो रहा था, आई थिंक सबके साथ हुआ है, जिन्होंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं उनके साथ तो हुआ ही है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ? इन्वायरमेंट ऐसे ही चेंज हुआ क्योंकि वो आपकी ज़रूरत थी। क्यों चेंज हुआ? एजुकेशन ने चेंज किया, ठीक है। और आज हमें से आप कई सारे लोग हो सकता है फ्यूचर में पीएचडी करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे और क्लास को इस तरह से डील करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? अरे भाई अपने एनवायरनमेंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, और कैसी बात है, करेंगे ना। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आप भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात उस टाइम पे। तो एक तो बात इनकी होगी। Another question which arises in our mind is, why do we need education? क्या मानते हैं भाई, क्या जरूरत पड़ गई हमको एजुकेशन लेने? हाँ, क्या जरूरत है? कोई आंसर करेगा? हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत ही आसान है। हाँ ठीक है, नहीं बोलना पड़ेगा। किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति को डेवलप होने के लिए एक क्रमानुसार कि हमें किस तरह डेवलप होना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें हमें शिक्षा के माध्यम से ही पता लगती हैं कि किसी चीज़ का महत्व कितना है, कितना और कैसा है, ये सब चीज़ें हमें एजुकेशन के माध्यम से ही पता लगेंगी। अच्छा ठीक, इसके अलावा आंसर हो गया? ठीक है, बताइए। I think man is a social being, so a lot of processing activities do we like to have in our life, and we have to learn a lot of times when we are visually developing our minds, thoughts and ideologies in our life, a lot of experiences. ठीक है भाई, एजुकेशन की जरूरत हमें इसलिए है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, उसके अकॉर्डिंगली अगर चलते हैं। हाँ ठीक है, एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि एजुकेशन जो है हमको जीवन जीना सिखाती है। हाँ ठीक है। वैसे पीछे से मुझे आंसर चाहिए थे, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों भाई? आज के दिन काफी एक्साइटेड लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। हाँ अनुज कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए एजुकेशन हमको इसीलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम चाहते हैं मॉरली, एजुकेशनली, सोशली और डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं सबके, ठीक है। हम एक ऐसी लाइफ जीना चाह रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इनकलकेट हो जाएं, ठीक है। तो एजुकेशन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमारी लाइफ को आसान बना रही है। आप खुद सोचिए, निरक्षर व्यक्ति है, उससे अगर कुछ कहा जाता है, मान लीजिए वो किसी सिचुएशन में होता है जहाँ उसको ज़रूरत है कि हाँ हमें कैसा व्यवहार करना है इस सोसाइटी में, ठीक है। अभी हम लोग हाल की ही बात है, फ्रेशर पार्टी में थे और उस टाइम पे अगर देखें हमारे यहाँ एजुकेशन किसी ने ली, किसी ने नहीं ली, हर तरह का स्टाफ यहाँ पे है। तो मेनली हम लोग अगर काफ़ी निचले स्तर के स्टाफ की अगर बात करें तो स्टाफ हमारे यहाँ क्या कैसा है, वो ऑब्वियस सी बात है एजुकेटेड नहीं है ना। तो नहीं है, अगर हम उसको बोले कि आइए आप पोडियम पे और आप 2 शब्द आप बोल दीजिए, तो जो उसके विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वो वैसे विचार प्रकट करेगा। अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से बताया है कि हाँ सिचुएशन ऐसी है, हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो सारी अलग अलग बातें हैं, ठीक। एजुकेशन हमारे लिए इस तरह से जरूरी है। हाँ भाई, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि एक भाई साहब थे और उसमें रहते हैं, मैंने सुना था उनके बारे में कि उनका व्यवसाय है दुग्ध पालन, पशुपालन, ठीक। अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, ठीक।
कहाँ कैसा व्यवहार, पैसे वाले बहुत, पैसा बहुत, करोड़ों के प्लॉट्स ले रखे हैं उन्होंने, लेकिन कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ करना है, कैसे बात करनी है, ये चीज मैंने देखा वो मिसिंग पूरी तरह से। तो भाई ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक सुधरी हुई लाइफ आप जी रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या हम और ये अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए हम दिखा पा रहे हैं? इकोनॉमिकली क्या हम लोग प्रॉस्पर तो कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो क्या हम समझ पा रहे हैं? ऑब्वियसली नो, ठीक है। तो ये बात आती है, तो इन्होंने बता रखा है जैसे भी है, एजुकेशन इज द बेसिक ह्यूमन नीड्स एसेंशियल फॉर डिसेंट लाइफ एंड मॉरल लाइफ। विदाउट एजुकेशन द ह्यूमन सोसाइटी वुड बी अनसिविलाइज्ड। अब देखो अनसिविलाइज्ड एक वर्ड आया है यहाँ पे, इस बारे में डिस्कशन हो सकता है। Uncivilized and useless hum grouping without any social, political, religious and physical developments. ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। Definitions of philosophy पहले से जानते हैं, हमने बेसिकली पढ़ रखा है, हम सब जानते हैं। तो फिलॉसफी क्या होती है? यहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिलॉसफी, फिलोस प्लस सोफिया, ठीक है। इसका मतलब होता है लव और विजडम या फिर नॉलेज ही कहते हैं इसको, ठीक है, लव और नॉलेज। अच्छा, कोई डेफिनेशन इसकी डिफाइंड आप नहीं कह सकते हो कि एक दायरे के अंदर है, अलग अलग तरह से ये बात को कहा जाता है। तो इसमें क्या है, क्या बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है? फिलॉसफी की जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारा एक दर्शन, यानी हम जो देख रहे हैं, हम उसमें अपने तार्किक विचार लाते हैं कि नहीं? तार्किक विचार लाना, अपना व्यू देना। अपना व्यू का मतलब यहाँ पे है कि आप कई सारे लोग हो, यहाँ पे जितने भी स्ट्रेंथ है टोटल अगर 55 अगर मान लेते हैं, तो उसके अंदर में एक किसी इंसिडेंस पर लोगों के कई सारे विचार हो सकते हैं। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि 5 साल का बच्चा और एक 25 साल का व्यक्ति और एक 50 साल का वृद्ध व्यक्ति, अगर एक चिड़िया को, मान लेते हैं चिड़िया को आते हुए देख रहा है, शाम का समय होता है, चिड़िया अपने घरों को जा रही होती है, तो उस टाइम के रिएक्शन, अब ये 3 लोग हैं, अब अलग अलग तरीके से इसी बात को इंटरप्रेट करते हैं कि वो चिड़िया जा रही है, तो आखिर वो क्या है? इंटरप्रिटेशन है, जस्टिफिएबल भी है, तार्किक है, यानी उनका अपना जितनी उनकी समझ है उसके अकॉर्डिंग वो बात बिल्कुल सही है। छोटा बच्चा आप जानते हो, उसको खेलने में और इसी में मजा आता है, क्योंकि उसकी दुनिया बहुत सीमित है। उसने क्या देख रखा है भाई? उसने केवल ये देख रखा है कि चिड़िया आई और वो पंख बढ़ा रही है और देखने में अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, और सूरज की रोशनी उसके पंखों पे पड़ती है और उसकी आंखों पे आती है, रिफ्लेक्शन और वो बड़ा अच्छा लग रहा है, एस्टोनिशिंग लग रहा है। तो एक तो बात ये होगी छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक 25 साल का हमारे आपके जैसे लोगों में से जब वो देखता है तो भाई उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या सोच रहा होगा कि इसने दिन भर मेहनत करी है, मेहनत करके आ रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं और दिन भर का स्ट्रगल होता है,
25 साल की उम्र में हम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो हम जानते हैं। ठीक है, हम यही सोचते हैं कि हमारी तरह ही इसका भी स्ट्रगल है सुबह से शाम तक। ठीक है, तो एक तो 25 साल के व्यक्ति का है इस तरह से, मैंने बोला 25 साल, 5 साल और 50 साल। ठीक है, तीनों का अलग अलग सोचता है। 50 साल का व्यक्ति कैसे सोचता है, कोई बता पाएगा? कोई बोलेगा? कोई बोलना चाह रहा है? ठीक है, देखिए 50 साल का व्यक्ति अगर सोचेगा, वो क्या सोचेगा? उसकी जो लाइफ जर्नी जैसे रही है, अंत में वो जैसा है, उसका दृष्टिकोण वैसे ही विकसित होता है। ठीक, तो दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण के से क्या मालूम चलेगा? वह है जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो अपने घर को जा रही है और अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर के जा रही है। क्या रिलेट कर पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? 5 साल के बच्चे का, 25 साल के एक व्यक्ति का और अंत में 50 साल के एक वृद्ध व्यक्ति का, तो तीनों में अलग अलग बातें आप उसके नजरिए से आप देखते हो, ये नजरिया ही है। ठीक है, एक तो ये बात हो जाती है, तो हम देख रहे हैं इसमें क्या है। मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखी, वो क्या देखी है? मैंने देखी है कि सबसे बड़ी बात ये है, जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन है। 5 साल का बच्चा, उसने जितनी दुनिया देखी, जैसा देखा उसके अकॉर्डिंग वो कह रहा है। समझ रहे हैं आपको? फिर जब आता है 25 साल वाला, तो वो भी ऐसे ही देखता है, उसका भी अपना एक अलग व्यू। ठीक है, लॉजिकली देख रहा है। ठीक, तो ये दो बातें तो बिल्कुल इससे निकल के आ रही है। हाँ भाई, फिलॉसफी की जरूरत क्यों है? बात तो ये आगे तभी तुम समझ पाएंगे कि भाई रिलेशन क्या है एजुकेशन और फिलॉसफी में। फिलॉसफी की जरूरत हमको क्यों होती है? जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अभी मैंने देखा जस्टिफिकेशन। अच्छा ठीक, अनुज बताइए, कहना चाह रहे हैं? किसी भी विषय में को चिंतन करके सत्य की निष्पत्ति करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिलॉसफी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कहा। और कोई किसी के कुछ विचार आ रहा है आप में से? आकाश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नोट करना चाह रहे हैं? देखिए, फिलॉसफी की जरूरत हम लोग इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्ड आया है रेशनल। आपने देखा कॉन्शियस, रेशनल। जो भी बच्चा वो कह रहा था, उसने जो सामने से देखा, इसका कॉन्शियस जो कह रहा था उसने किया वैसा। रेशनल डिसिप्लिन भी है, हर एक बातें वहाँ पे आ रही है। लेकिन जरूरत क्यों है? अगर वो बच्चा ये बात नहीं कहे जो उसको कहनी चाहिए, वो अगर ये नहीं कहता है, तो आगे आने वाले इंसिडेंट्स में वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा और कह नहीं पाएगा कि उसका विचार क्या था। यानी कि जो चिड़िया के बारे में कहना चाह रहा था, वो लॉजिकली अगली बार उसके सामने नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या आगे से लॉजिक को रखेगा, उसका दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये बात ठीक है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इनको डायरेक्शन देनी है। बात तो यही है, क्या कर रहे हैं भाई? फिलॉसफी से अगर हम
इस बात को समझें कि फिलॉसफी क्यों पढ़ते हैं भाई, हम उसको डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे आपको डेवलप करना है। फाइनली जब कर रहे हैं भाई रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, तो क्या रिलेशन होगा फिलॉसफी और एजुकेशन में? डिफरेंट हम लोग पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट एंगल से उनको समझने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से एजुकेशन और फिलॉसफी को जोड़ता है। व्यक्ति होता है, समाज होता है, डिफरेंट आधार से मिलते हैं। Aims and objectives. So, have you heard this word aim and objective previously? Yes, of course. Yes, yes. What are aims or objective? Anyone who wants to? Okay. Shivam. एम्स होते हैं, अगर हम लोग छोटे छोटे उद्देश्य को बनाते हैं, उनके थ्रू हम एम्स को क्रैक करेंगे या फिर अचीव करेंगे। एम्स हमारे पर्टिकुलर एक साध्य हो जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारे साधन का कार्य करेंगे जिनके थ्रू हम एम्स को अचीव करते हैं। ठीक। हाँ, इन्होंने शिवम सर ने तो उल्टा बता दिया। एम्स तो छोटे छोटे पार्ट में होते हैं, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट उद्देश्य बड़े होते हैं। जैसे उद्देश्य हमारा गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो हम छोटे छोटे उद्देश्य बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे डे बाय डे। और कोई आंसर करना चाह रहा है? कोई बात नहीं। अमिता, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एम्स, जैसा कि हम कोई भी पेपर पढ़ते हैं तो उसके ऊपर उसके ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो सिलेबस पढ़ के या वो कंटेंट पढ़ के हमारी ये स्किल डेवलप हो पाएंगी। लेकिन वो जो सारे पेपर मतलब ऐड करके एक कोई निश्चित एम कर लेते हैं, मतलब गोल जो लॉन्ग टर्म होता है वो होता है। लॉन्ग टर्म होता है। हाँ, ये एक शब्द आ गया, लॉन्ग टर्म। एक उद्देश्य होता है इसका। आप किसी को आइडिया है क्या लिखा है? इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, एक एग्जांपल से शुरू करो। जैसे मान लीजिए कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, एक ही और मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल आपको तो दिया था कि हम जब पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अभी सारे पेपर को मतलब हम एमएड कर रहे हैं, एमएड करने के बाद उन सारे पेपर को पढ़ने के बाद हमारा एक एम होगा कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म हो गया हमारे, में हमने हर पेपर के अलग अलग पढ़ लिए, कंबाइन कर दिया पूरी कोर्स को, सिलेबस को। ठीक है, बिल्कुल सही बात बताई। जैसे कि देखिए क्लास 8 में बच्चा होता है, उस टाइम पे शुरू हो जाता है कि भाई इसको क्या करना है, इसको क्या बनना है। उससे पहले तो शुरू होता है करते नहीं लोग आमतौर पर। 6 7 आते आते थोड़ा सा हम लोग सीरियस होते हैं, इसको बताते हैं कि क्या बनना है हमको। बच्चा बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है। भाई डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करोगे? तो उसका एक काउंसलर उसको ये बताता है कि नहीं भाई क्लास 8 हो, क्लास 10 आपको अच्छे से पास करना पड़ेगा, 12 भी पास करना पड़ेगा। काउंसलर में कई सारे लोग हो सकते हैं। हो सकता है आपका पड़ोसी कोई अच्छी पोजीशन पे व्यक्ति हो, ठीक, आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, कोई भी आपको एक कहे कि हाँ आपको ये बनना है, तो वो क्या बताएगा? सबसे पहले यही बताता है कि
कि आपको 10th पास करना है, 12th पास करना है, देन आपको ग्रेजुएशन करना है और आप इस फील्ड में आ जाओगे। तो फाइनली यहाँ पे इस बात से क्या निकल के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और एम क्या है, कोई बता पाएगा? अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक अब भी कोई बोलना नहीं चाहता पीछे से? अच्छा ठीक है, आप बाहर बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि और भी लोगों को बोलना चाहिए। ठीक है, तभी इंटरेक्टिव क्लास होगी। आई थिंक हमारा मोटिव यही है। ठीक है, मुझे आपको बताइए छोटे ऑब्जेक्टिव्स के जरिए हम उद्देश्य को प्राप्त बिल्कुल। मैंने सीढ़ी बनाई, सीढ़ी क्या है भाई? क्या है? ऑब्जेक्टिव्स। फाइनली एम। छत पे पहुंच गए ना? ये क्या है? अरे भाई ये क्लास 10 है ना, है कि नहीं? 12 है, बिल्कुल है। इसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर इसके बाद पीजी है। फाइनली अगर डॉक्टर बनना है तो CPMT अलग स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद हम बन जाएंगे डॉक्टर, ठीक है। ओके सर। हाँ, लक्ष्य एक होता है, उसको पाने के लिए उद्देश्य काफ़ी होता है। बिल्कुल। एम से लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य होता है। लक्ष्य उद्देश्य एक ही चीज़ है।
लेकिन ये लोग हम बोल रहे हैं हमें फिलॉसफी की बात कर रहे हैं थोड़ी सी। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, तो अभी मैं बात बताइए, आपको समझ में आई? यस। तो हर एक सीढ़ी पे हमने पैर रखा और हम अपने छत पे पहुंच गए। तो हर एक सीढ़ियां क्या है? ऑब्जेक्टिव हैं, छोटे-छोटे होते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर बन गए। तो ये बात ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी इस पर्सपेक्टिव में कैसे काम करता है। स्लाइड में आपने इसको लिख कर दिया होगा, क्या क्या लिखा होगा, इलेबरेट इसी को करना है, ठीक है। तो देखिए, मैंने देखा कुछ समय पहले मैं Quora.com पे ब्लॉग्स लिखता हूँ, मैं लिख रहा था। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर, जिनको मैंने उस वक्त में देखा कि उनके विचार थे। हालांकि मैंने इस बारे में यूट्यूब में पहले से देखा भी था और मुझे वहाँ से भी मालूम चला, तो मुझे समझ में आया कि अगर तुलना करते हैं भारतीय समाज में कि यहाँ लोगों को देखने का नजरिया और एजुकेशन में क्या संबंध है, तो पाकिस्तानी सोसाइटी को थोड़ा सा अलग आपको नजर आता है। चाइनीज सोसाइटी में रहेंगे वहाँ थोड़ा सा अलग नजर आएगा। तो भाई पाकिस्तानी सोसाइटी में उनके एजुकेशन के अंदर देखो, मैंने एक बुक देखी उनकी, तो क्लास 8 की बुक, साइंस। उन्होंने साइंस की बुक में पहला जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय अल्लाह। हालांकि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, सारी बातें नहीं करेंगे, लेकिन लॉजिकल एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि ये कैसे प्रभावित कर रहा है। यानी वहां की सोसाइटी में जो इस तरह की बात उन्होंने लिख रखी, साइंटिफिकली अगर हम देखें ऐसा तो नहीं है, क्या है ऐसा? कोई एग्री कर रहा है बात? नहीं करेगा, नहीं करेगा। पहले से हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी है उसके पीछे। भाई बिग बैंग थ्योरी ने तो पहले ही प्रूव कर रखा है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक तरीके से चल रही है, ठीक है। इसके पीछे कोई एनर्जी है, बट वो क्या है वी डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान की क्लास 8 की एक साइंस की किताब में ये लिखा जाता है। तो भाई ये बात कहाँ से आई? उनके देखने के नजरिए के हिसाब से, ठीक, वो अपने नजरिए से देखे। चलिए ठीक है, अब इसको इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं। भाई इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है? यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है, हम लोगों के अगर हम देखें तो पुराणों और ग्रंथों, जो भी ग्रंथ हैं हमारे महाग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग कुछ बातें लिखी हुई हैं जो रिफ्लेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहां से एग्जैक्ट्स है, एग्जैक्ट्स नहीं है, ये बातें निकल करके आती है ना। व्हाट विल बी डिड्यूस, क्या डिड्यूस कर रहे हैं हम बातों से, वो बातें लिखी हुई हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, अब पाकिस्तान में ये चल रहा है, उन्होंने और भी चीज़ें बोली इसके साथ साथ कि भाई हमें खुदा हाफिज़ बोलना है और ये सब चीज़ें बोलनी है। इंडियन सोसाइटी में मैं क्लास 8 तक मैं सरस्वती शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में पढ़ रहा था। मैंने क्या देखा वहाँ पे जो चीज़ें हैं, यानी कि आप अगर किसी आचार्य, वहाँ आचार्य बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में आचार्य मुझे मालूम चला कि प्रोफेसर को ही बोल सकते हैं, बट वहाँ एक जो सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, वो किसके अकॉर्डिंग डेवलप हुआ? भारतीय दृष्टिकोण के
अंतर्गत। हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वहां पे सब बोल दें, नहीं बोल सकते। पड़ोस में बैठे हुए बच्चे को हम बच्चा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भैया जी करके बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, मतलब जो वैल्यू सिस्टम यहाँ से आ रहा है, जो दृष्टिकोण यहाँ से आ रहा है, तो जो दृष्टिकोण यहाँ से आ रहा है, तो आपने देखा पाकिस्तान का सिस्टम एजुकेशन में फिलॉसफी कैसे इंक्लूड हो रही है, कैसे वो प्रभावित कर रही है, और भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के दृष्टिकोण में भी ऐसे ही कुछ ना कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सामने से बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती आपको कहा जाए। मॉरल वैल्यूज के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, सोसाइटी यानी सोशल वैल्यूज के फॉर्म में हो सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू सिस्टम काम करता है, ठीक है। चाइना में भी ऐसे ही, चाइना में सभी ने नाम सुना होगा कन्फ्यूशियस का। चाइनीज पढ़ लेते हैं। कन्फ्यूशियस द फाउंडर। कन्फ्यूशियस सही है। कन्फ्यूशियस इनकी विचारधारा चाइनीज किताबों को उठा करके आप देखेंगे, उनका जो दृष्टिकोण था वो वहां झलकेगा ही। अब इसकी तुलना भारत के से करते हैं। महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं, सबने सुना, मॉरल साइंस की किताबों में महात्मा गांधी का नाम तो सीधे सीधे से आता ही आता है। क्यों आ रहा है भाई? उनके सिद्धांतों पे तो चलना है। अहिंसा की बात होती क्यों होती है? सारी बातें हो रही है, क्या है? दृष्टिकोण है हमारा अपना व्यू। किसी एक व्यक्ति ने दिया, लेकिन एजुकेशन के अंदर उसके इम्प्लीकेशंस दिखाई देते हैं, होता है। अभी जो बात कर रहे थे उसी बात में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि मेथड्स एंड करिकुलम, भाई इसके अंदर फिलॉसफी और एजुकेशन का जो रिलेशन है, मैंने आगे कभी आपको डिस्कस किया है, वो चीजें वहीं से क्लियर हो गई है, काफी आगे तक चीजें हो गई। ठीक है, फिर बात आती है एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। भाई डायनामिक साइड, डायनामिक सभी इससे वाकिफ हैं। गतिशील, डायनामिक मतलब क्या? गतिशील। हाँ भाई, अब गति कौन दे रहा है? फिलोसोफर दे रहा है ना। फिलोसोफर फला फला बातें बोलेगा और हम उसको अनुकरण करेंगे, अच्छी बातों को अचीव करेंगे, करने लग जाते हैं। डिफरेंट फिलोसोफर में डिफरेंट बातें। ठीक, तो डायनामिक साइड कैसे है? साइंस की किताबों में देखिए, सोशल साइंस की देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस की देखेंगे, हर एक जगह अपनी अपनी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो गतिशीलता आप देख रहे हो बंधी हुई नहीं है, यानी कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बंधा हुआ नहीं है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। प्लेटो बोले, कन्फ्यूशियस बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलेंगे, जॉन डीवी बोलते हैं, तो भी बोले। ठीक है, ये सारी बातें वहां से निकल करके आती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है साउंड माइंड इन साउंड बॉडी और वर्चुअस मैन। भाई वर्चुअस मैन कुछ नया लग रहा है? वर्चुअस मैन, वर्चुअस मैन मतलब शिष्ट व्यक्ति, है ना। देखो एजुकेशन और फिलोसफी इन्होंने मिलकर भी जो काम कर रखा है, यानी कि अभी आप बात करते हो कि एजुकेशन क्या करती है,
हमारा सर्वांगीण विकास है ना। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है? सर्वांगीण विकास जीवन ऐसे कोई एक व्यक्ति बोलना चाह रहा है, आप बोलना चाह रहे हैं तब ना? अच्छा, कौन बोलना चाह रहे हैं आप? सारे पक्षों का विकास, हाँ, सारे पक्ष में कौन कौन हमारे सा व्यक्ति के सारे पक्षों का विकास। तो मैं कह रहा था व्यवहार करने साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। तो एजुकेशन और फिलॉसफी का संबंध ऐसा हो गया है कि किसने सारे पक्ष, शारीरिक पक्ष है ना, दिख रहा है, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, शारीरिक पक्ष, फिलॉसफी कैसा असर डालता है भाई? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ मस्तिष्क का मस्तिष्क का विकास विकास होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, शक्तिमान के लोगों ने देखा होगा, बॉडी सैंपल है ना, क्यों बोलता था भाई वो है? केवल ऐसे घूमने के लिए तो भी नहीं देखते थे ना। हाँ, लास्ट पार्ट आता था वो भी काफी अच्छा था, उसमें मतलब यही बात थी कि उन्होंने बोल रखा है कि ये चीजें कहाँ से आ रही है। बॉडी सैंपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ से आ रही है, हमारे वैल्यू सिस्टम से आ रही है, हमारे देखने के नजरिए से आ रही है, और हमको एक अच्छा नागरिक बनाने की ये कोशिश है। क्या आप अग्री कर रहे हो इस बात से? ठीक है। अच्छा, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, एक बात ये भी आती है, अभी ये तो बिल्कुल ही नई बात लग रही है, ऐसा लग रहा है ना। तो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? संबंध इतना गूढ़ हो चुका है कि दोनों में अंतर कर पाना अब पॉसिबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात है कि फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, there is a separate branch of philosophy which is called philosophy of education. The branch investigates that what should be the nature of education. ये philosophy बता रही है where the education aims to be based on specific religion, social, moral, scientific basis, and how these aims can be achieved. एजुकेशन के बल पे हम केवल नहीं जान सकते, हमें डॉक्टर बनना था, हमारा एक दृष्टिकोण था, कैसे आया? विकसित किया गया है, विकसित ही किया गया है, तभी हम ऐसा करने की स्थिति में होते हैं। ठीक है, चेंज इन एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। चेंज इन कल्चर, इसके बारे में अभी हम लोग अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे, चेंज इन सोसाइटी पढ़ रहे थे, सारी चीजें पढ़ रहे थे। क्या मतलब है इसका भाई? एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, ऐसा ये नहीं हो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि इंटरैक्टिव बनाना है तो उसको हमें करना ही पड़ेगा। सोशल चेंज, प्रिया बताने वाली, आप देख रहे हो सोशल चेंज। और कोई काफी क्लास डल लग रही है, तो ऐसा लग रहा है बोर हो गया। नहीं, बोर नहीं होना भाई। चेंज इन एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, यहाँ भी संबंध हम देखेंगे कि एजुकेशन और फिलॉसफी ने, इसके परस्पर संबंधों ने क्या इम्पैक्ट डाला सोसाइटी पे, कल्चर पे। सोसाइटी आप जानते हैं, सोसाइटी आप जानते हैं, यस, छोटा सा ग्रुप होता है, इसके अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक नियम एम्स होते हैं, नियम होते हैं। ठीक, कल्चर क्या है? कल्चर क्या है? संस्कृति समाज को जोड़ने के लिए हर एक समाज की अलग संस्कृति होती है। This is not the way खड़े represent yourself. लेकिन बोलना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो फिर थोड़ा सा, अगर मैं वहाँ पे होऊंगा तो मुझको भी रिएक्शन वैसे ही करना है। हाँ, तो कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कल्चर क्या है? कोई भी बोलना चाह रहा है? अच्छा,
प्रत्येक समाज का रहने का तरीका और उनके खान पान वगैरह जो हैं वो सब कल्चर के माध्यम से ही आते हैं। और वो सब अपने आप मतलब जो एक समाज जो है संस्कृति अपनाता है, अपने नियम बनाता है, उन्हीं के अनुसार उनकी संस्कृति बनाई जाती है। यानी कि उसके रहने, खाने पीने, कार्य करने के तरीके, सोचने के तरीके में जितना भी हम परिवर्तन देखते हैं वो हमारा कल्चर में नजर आता है। ये चेंज होता रहता है। चेंज कैसे होता है? अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि समय के संस्कृति अनुसार दूसरे की संस्कृति और पहली जो संस्कृति थी उनमें क्या हो रहा है? अंतर संबंध स्थापित हो रहा है। जब ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है भाई? परिवर्तन होता है। और ये कहाँ से आता है? समय के अनुसार दृष्टिकोण से आता है। हम लगातार सीखते हैं और किसी के दृष्टिकोण से सीखते हैं, ये भी बात। तो हम कंक्लूसिवली क्या कह सकते हैं? कंक्लूसिवली हम लोग अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी वेरी क्लोज, very close. They are called the two sides of same coin. Yeah. That is why educationists and teachers must have basic information about various educational philosophies in order to know the whole nature of specific educational ends. तो भाई ये तो कंक्लूजन, इस पूरी बात का निचोड़ क्या निकलता है? यही फाइनली निकलता है कि ये लोग यानी एजुकेशन और फिलॉसफी पूरी तरह से एक दूसरे में खुली मिली हुई है, ठीक है। और एजुकेशन एक तरफ से फिलॉसफी को फोर्स कर रहा है, ठीक है, और फिलॉसफी एक तरफ से एजुकेशन को फोर्स कर रहा है। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे की तरफ वापस आ रहे हैं और बहुत तेजी से आ रहे हैं। साइंटिफिक साइड में भी देखा, हर जगह से आपने देखा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का रिलेशनशिप एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो फाइनली इस बात से हम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। और मुझे बताइए भाई कैसा लगा आपको? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ इंटरैक्टिव हो। जी अच्छा लगे। गुड आफ्टरनून। मैंने कोशिश करी है कि पूरी तरह से अभी चल रही है नहीं मैम, अभी से 5 साल पढ़ा रहे हैं लास्ट पीपीटी के दौरान। तो आई थिंक मैंने भी उसको मीट करने की कोशिश करी। हाँ जी रुमाइए। क्या फ्लो ठीक है अभी? यस। पहले से बस अब खत्म हो जाएगी। देखिए आपने मैंने तो घबराया हुआ है, मुझे लगा कोशिश कर रहा हूँ। यस। तो यहाँ पे ठीक है जी 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 1 बजे बंद करिए। 1 बजे जी ठीक। देखो भाई सब लोग तनुजा मैम कह रही है गूगल मीट का लिंक भेजेंगी, सब लोग डाउनलोड कर लेना। 1 बजे से ऑनलाइन गूगल मीट के क्लास लेंगे। प्रिया यू हैव टू टीच, ठीक है, पढ़ाओ। सब कुछ समझ आ गया? तनुजा मैम का ये निर्देश है कि गूगल मीट का लिंक भेजेगी, ठीक है, और आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और 1 बजे से क्लास स्टार्ट होगा और मैम भी ऑनलाइन रहेंगी, सब लोग ऑनलाइन रहेंगे। प्रिया को टीच करना है, ठीक है। लिंक मैम भेज रही है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हो गया ना भाई, मेरा भर जाएगा, फिर हम क्या करेंगे?